So I was on my way to Baner. I wanted to have lunch with the two kids. The kids are not mine. I stay in my uncle's building, and the kids are his tenants. So they're moving to Canada in like 7 days. And since it was my off day, I said I will just go and have that one meal with them. And I left from Hadapsar to go all the way to Baner. And when I actually was about to reach the Mahabaleshwar Chowk where this incident happened, before that, this uncle was, like blocking me. He wouldn't let me go to the left, to the right, and he was constantly doing that. When the signal was red and our vehicles came, parallel to each other, I tried to have a dialogue with him saying like, okay, why would you do this? Why are you driving like this? To which he very aggressively, took his window like down and he started abusing me. And his overall body language was so aggressive that I figured that this guy is up to no good. And I got that space. The signal got green. We left. I got that little bit of space. I took my vehicle to the left. And I took it on the, Baner Pashan Link Road because it's a narrow lane. And I saw a cop, majorly I saw a lady cop in that particular, that signal. And I was like, okay, if he's going to do something, there's going to be help for me. I'm not going to be alone. So I took my vehicle to the left, and this man, he came speeding, and he was speeding at a level wherein I could hear the way he's racing. I could hear that voice, and the kids behind me started screaming very loudly, saying that Didi humko uda dega. Oh, why don't you do something about it? So my first thing was I took it to the left in that narrow lane, and I was like, okay, let me just have a word with him. This guy, he comes, he just blocks me, gets out of his car very furiously, grabs me by my t-shirt, and he's a tall man. He grabs me by my t-shirt, and he just punches me straight like so many times that, I went blank for like 10 seconds. And till the time I could get back into my senses, his wife from the passenger seat came out to see what's going on. She didn't, intervene in this entire thing. She came out, and then when I saw, till the time I could come into my senses, this guy was, his left hand was on his car's door. Like he was trying to flee away from the incident. And when I saw that, I was like, okay, I couldn't see what's going on around me. I just, without thinking twice, I just went into his passenger seat. I went there. I tried to get the keys from there, and I got hurt also in that entire thing. His wife, she got on top of me, like from back. She pulled my hair. She was trying to get me out, and she kept saying in Marathi, "Killi de, amchi killi de," asaka kartes types. And there was another lady who, tried to help me, like in this entire situation. She came, she grabbed that lady, this man's wife. She grabbed that lady, she pulled her out, and she said, "Aapne already usko itna mara hai, why are you still doing this to her?" And then she got the two of us separated from this entire scenario. When the man saw that the keys are with me in my pocket, this man from this side, from the door, he comes here and he tries to push me in that nala which is there. He tries to push me with my vehicle. And my legs were like above knee. I was into that muck which is there. I was trying to, somehow get a grip and not fall into it. So this guy did that, and because I had the keys, thankfully I got the keys, I handed it over to a cop. In this entire thing, there was one man who came. He was a cop. He opened his jacket. He showed it to me. "I'm a cop. Can you just hand over the keys to me?" I gave it to him. And then the people who were there, they rushed me to the hospital. They took care of the kids who were with me. And they took me to a local hospital there for the primary treatment. We did that. And then I was rushed to Chadrashungi police station. And after that, the cops were very supportive. I would like to thank Shamal Patil ma'am. She helped us out throughout without thinking twice. She was on her feet. She was constantly there providing us with help. She saw that my bleeding wasn't stopping even when I went after this primary treatment to the police station. She was like, "Okay, you're bleeding, you're still bleeding. Would you want to go to another hospital?" She made up papers very quickly. She sent us to Sassoon Hospital. We went there. From there, they again sent another lady cop to, assist me and help me out while my friends were there with me.
So, yeah, and then after this entire scenario, then they checked up on me. They're like, would you like to just come back to the police station to, file this FIR? We'd like to understand what exactly happened. So, yeah, I mean, I Now, went back. this all incident happened in broad daylight yesterday. You also raised a question of safety of Correct. women in the. So what was your that point? What do you think about it? It's really concerned. I, I just, I just felt very, like, I felt helpless. Even though, I see, if you check my Instagram, people are still writing there saying like, oh, the video was important to her. Before taking an ambulance or taking any medical treatment, she made that video. I just want to put it out there that the video was made, it was made for my own, like as an evidence that this has actually happened because the man was about to flee. So I had no proof on me. I would have, like, how would I prove? I don't have people around me. Who's going to, come as as a witness to say this entire thing? And I used that video on my channel. I had the medium. I put it up, seeking and screaming for help. If it was just for attention or for anything that I want those likes or views or hits, it wasn't that. I have tagged media in it. I I dialed to a lot of media people from the incident because I have worked with the media for a brief period. So I had certain contacts. I tried to do this like, okay, this is what has happened. So yeah, I mean, it's just that if it can happen to me, it can happen to anybody, and it's not cool. It's not cool for people to do something like this. And I had that medium, I put it out. What if a normal person who doesn't know how to use Instagram, was not there on social media, or wouldn't have, that particular following or whatever to put it out? How would you get help? This wouldn't have come. It wouldn't have come to light. How would you get help? So that was my whole idea of putting it up. So yeah, I mean, safety wise, I don't know how else. Pune was never a city like this. I'm born and brought up here. It wasn't like this. It was like the best city, but I don't know where it's going now. What do you want? Like, what's your expectation? Like, this, because you are very vocal also on social media. So, what is your expectation? How we can make this? I just feel basic rules should be in place. People should stop behaving like maniacs when there's so much going around. Just be mindful of what you are doing. It's not cool. आप एक सिग्नल तोड़ रहे हो, मत करो. आज ऐसा हो गया है कि आपको सिग्नल देख के रूल फॉलो करके जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है. आपको देख के जजमेंट करके चलना पड़ रहा है कि सामने वाला शायद लेफ्ट ले रहा है या राइट लेगा या पता नहीं क्या करेगा, कैसे जाएगा. यू हैव टू जज द पर्सन्स दिस थिंग एंड देन गो बाय इट. इट्स नो लॉन्गर बाय द रूल्स. There are roads blocked. There's so much work going on. It's okay. Leave home early. Don't rush. Don't do this. So just basic rules should be, in place and strict. And I think that in itself is going to help. क्या हुआ था कल एग्जैक्टली आपके साथ में? आपने वीडियो भी डाला है, लेकिन पूरा मामला क्या था? जी, तो कल मैं मेरे घर से निकली थी. मेरे साथ में 2 बच्चे थे. ये 2 बच्चे मेरे अंकल के बिल्डिंग में, हम सारे साथ में रहते हैं. तो ये अंकल के टेनेंट्स हैं. ये अंकल के टेनेंट्स, ये बच्चे कनाडा जा रहे हैं इन 7 डेज. और मेरा कल ऑफ डे था, तो मुझे उनके साथ में एक लास्ट लंच करना था. इसलिए मैं उनको बानेर लेके जा रही थी. वॉज एज अ न्यू प्लेस, वहां पे मैं उनको लेके जा रही थी. एंड तब जब मैं यहाँ से निकली, मैं बानेर के वो रोड पर जब मैं पहुंची, महाबलेश्वर चौक जिसको हम बोलते हैं, उसके पहले से अंकल जो ये थे 2 किलोमीटर से मेरे साथ में उनका चल रहा था. मुझे कॉन्स्टेंटली ब्लॉक कर रहे थे, मुझे रास्ता नहीं दे रहे थे जाने के लिए. तो ये सब में जब मैं मेरी गाड़ी उनके थोड़े पास में आ गई, तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो भी कर रहे हैं, आप ऐसे मत गाड़ी चलाइए. आप देखिए कि आपके आजू बाजू में भी क्या चल रहा है. तो वो कांच नीचे ले लेते हैं और वो मुझे अब्यूज करना चालू करते हैं. मुझे गालियां दे रहे थे वो बहुत. और उनका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज इतना अग्रेसिव था कि मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ तो कर लेंगे. तो
मैं आगे चली गई, मुझे रास्ता दिख गया, सिग्नल ग्रीन हो गया, मैं आगे चली गई। आगे जाके मैंने लेफ्ट में गाड़ी मोड़ दी और मैंने रोक दी गाड़ी वहां पर जाकर। एंड वो लेन जो थी जहां पर मैंने गाड़ी रोकी थी वो बहुत ही नैरो है, और मेरा मेजर कंसर्न ये था कि एक लेडी कॉप बीच में सिग्नल पर मुझे दिखी, तो मुझे पता था अगर ये कुछ मेरे साथ में बदतमीजी करेंगे तो मेरे पास हेल्प है यहाँ पर। इसीलिए मैं वहां पे मैंने गाड़ी रोकी, बट इन्होंने इतना विद इन 2 मिनट्स में इन्होंने इतना गाड़ी फास्ट लाकर, वो इतना रेस कर रहे थे गाड़ी को कि मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, वो इतना जोर से एक्सेलरेट कर रहे थे, और आगे 4 गाड़ियां और भी थी। मुझे नहीं पता वो कैसे आए, उसमें से कैसे निकले, बट बच्चे मेरे पीछे बैठे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे कि दीदी ये हमको उड़ा देगा, डू समथिंग अबाउट इट। तो मैंने लेफ्ट में गाड़ी रोक दी, ये पीछे से अंकल आ गए, मेरी गाड़ी ऐसी लगी और मैं उनसे बात करने तक, मैंने गाड़ी रोकी इसलिए, वरना मैं स्पीड करके और चली जाती। मैंने रोकी टू हैव अ कॉन्वर्जेशन, उनसे बात करने के लिए, बट ये बाहर उतर के इन्होंने मुझे मेरे टी शर्ट से ग्रैब किया, और उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, इज वेरी टॉल। तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के मेरे नाक पर मुझे कॉन्स्टेंटली इतना मारा कि मुझे 10 सेकंड के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद में जब तक मैं फिर से मेरे सेंसेस में आई, तब तक इनकी वाइफ बाहर आ चुकी थी पैसेंजर सीट से। वो बाहर आ गए, उन्होंने बाहर आके देखा कि क्या चल रहा है। एंड जब मैंने देखा, जब जब तक मैं होश में आती हुई, अंकल का हाथ लेफ्ट वाला उनके दरवाजे पे था और वो वहां से भागने के इसमें थे। तो जब मैंने वो देखा दैट ही इज ट्राइंग टू रन अवे, और उन्होंने मुझे इतना मारा तो वो किसी को भी मार के धक्का देके निकल जाएंगे। तो मैं पैसेंजर सीट से मैंने जाके उनके कार की चाबी निकालने का, उसमें मुझे लग भी गया काफी, तो निकाली मैंने वहां से। तो उनकी वाइफ मेरे पीछे आ गई, वाइफ मेरे पीछे आके उन्होंने मेरे बाल खींचे। वो मुझे मराठी में कहने लगी कि आमची किल्ली परत दे आम्हाला, का असं करतेस। तो फिर मेरे पीछे एक और, उनके पीछे एक और लेडी आ गई जो मुझे हेल्प करी थी ये सिचुएशन में। वो लेडी ने इनके ऊपर जाके इनको बाहर निकाला, आपने उसको ऑलरेडी इतने बुरी तरह से मारा है, आप उसको और मार रही हो। तो ये सब में वो लेडी और मैं सेपरेट हो गए। और जब अंकल ने ये देखा तो अंकल वहां से फिर से आ गए। यहाँ पर आकर जब मैं मेरे गाड़ी के पास खड़ी हुई थी, इन्होंने मुझे फुल फोर्स से मेरे यहाँ हाथ लगा के मुझे धक्का देके, वहां पे एक नाला है नीचे, देयर इज अ स्लोप, तो वहां पे मुझे मेरे गाड़ी के साथ पुश करने की कोशिश की। तो मैं गाड़ी से साइड में हट गई और मेरे पैर, मतलब मेरे एंकल्स के ऊपर तक वो कीचड़ में फंसे हुए थे। समहाउ मैंने ग्रिप बना के उनको, मैंने आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ अप एंड या ही वेंट। फिर लोग वहां से आ गए, लोगों ने आके उनको वहां पे पकड़ लिया। तब तक एक पुलिस आ गए, मैंने पुलिस के पास कीज हैंड ओवर कर दी। मैंने बोला ये आप कीज ले लो। उन्होंने उनका जैकेट खोल के देखा, मैं पुलिस हूं। मैंने बोला इनको जाने मत दीजिए। फिर वहां पे मुझे हेल्प मिली। मैं वहां से, मुझे एक कपल था, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए, एक लोकल हॉस्पिटल में। वहां पे मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद में मुझे फिर चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन बुलाया, और बट पुलिस ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। श्यामल पाटिल मैम ने बहुत ज्यादा ये पूरे केस को एक्सपीरिएट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी। एंड ये होने के बाद मैं वहां पर गई। मैम ने देखा कि मेरे हालत नहीं है, कि स्टिल ब्लीड हो रहा था बहुत ज्यादा, तो उन्होंने मुझे वहां से हेल्प एक्सटेंड किया, सेइंग कि आप ससून हॉस्पिटल चली जाओ। उन्होंने मेरा पेपर वर्क कराया, पेपर वर्क करा के मैं ससून चली गई। वहां पे हमने हमारा जो भी दवाई था वो सब ले लिया। फिर उन्होंने मुझे फिर से पूछा, एक लेडी कॉप को भी भेजा मुझे वहां पे असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने। जो कल्प्रिट थे उनको गिरफ्तार कर लिया? उनको वहीं पे कर लिया था। जब मैंने उनको कार कीज दे दी थी, उनको वो वहीं से लेके चले गए थे। पुलिस ने आपकी पूरी तरह से मदद की इसमें? करेक्ट। ओके। अभी पूरा जो मामला हुआ है पूरी दिन दहाड़े हुआ है पुणे सिटी में, जो रोड रेज हो या फिर आपको क्या लगता है? यू आर यंग, यू टॉक अबाउट इट, वी टॉक अबाउट, हम पुणे के बारे में बात करते हैं। Correct. क्या लगता है कि व्हाट वेंट, क्या गलत हुआ, क्या होना चाहिए सही, करेक्ट हो गया? ये ब्रॉड डे लाइट में अगर कोई बाहर निकल के किसी को मार रहा है, वो इतना कंफर्टेबल है ऐसा कुछ करने में किसी के साथ में, सो आई थिंक जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि उनको कुछ था ही नहीं ऐसा। मे बी उन्होंने ये किया है पहले और उसे निकल गए बाहर, ऐसा कुछ हो सकता है। दैट्स वाई सेफ्टी वाइज ये सेफ नहीं है। दिस इज नॉट सेफ इन एनी वे और मैनर। ये मेरे साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। लोग, जब मैंने ये वीडियो डाली,
मेरी ये हेल्प के लिए क्राई थी कि ये ऐसा हुआ है। और मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही था, जो वो सिचुएशन वहां पे जो चल रही थी एट दैट पॉइंट, मुझे पता था कि ये अंकल निकल जाएंगे। ये निकल जाएंगे तो मैं खुद को कैसे प्रूव करूंगी वहां जाके कि इन्होंने मुझे बुरी तरीके से मारा है। तो मैंने वीडियो उसीलिए बनाई थी ताकि मैं एज अ हेल्प, एज एन एविडेंस मैं ये आगे दिखाऊं कि मेरे साथ हुआ है। ये मैंने कोई व्यूज, लाइक्स, शेयर इसके लिए मैंने नहीं किया। इट वॉज अ क्राई फॉर हेल्प एंड विच वर्कड। बट मेरी बात यही है, मेरे पास मीडियम था, मेरे पास चैनल था, मैंने उसके ऊपर डाला, मेरे पास हेल्प था, मैंने वो किया। बट ये किसी नॉर्मल लड़की के साथ होता है, मान लेते मेरी बड़ी बहन, वो नहीं यूज करते सोशल मीडिया इतना, उनके साथ होता तो वो क्या करते? कोई एक नॉर्मल इंसान के साथ होता जो इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करते, उनके साथ में होता तो ये मैटर तो कभी बाहर ही नहीं आता। तो सेफ्टी वाइज आई डोंट थिंक सो कि ये सेफ है इन एनी एंगल और इन एनी मैनर। तो देयर शुड बी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो होने चाहिए। आई मीन बाहर जाके रेस करना, किसी के साथ में आप ऐसे कर रहे हो जैसे कोई रेसिंग ट्रैक पे आप गाड़ी चला रहे हो, इट्स नॉट कूल। मत करो, घर से जल्दी निकलो। आपको पता है मेट्रो का काम चल रहा है, पूरी तरीके से चल रहा है, रास्ते डाइवर्जन हो रखे हैं, जल्दी निकलो। मत करो, किसी को रेस कर रहे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मत, किसी का लाइफ को आप रिस्क मत करो। ये तो ठीक है दैट आई वॉज इन द फ्रेम ऑफ माई माइंड कि मैंने वो लेफ्ट ले लिया। अगर मैं वही सोच रही थी और मैं घर पे भी यही बता रही थी, अगर मैंने वो सीधा रास्ता ले लिया होता, ये मुझे उड़ा के चले गए होते और उनको कोई पकड़ नहीं पाता। तो ये बात भी अभी तक क्लियर नहीं है कि वीडियो आधी क्यों गई है, आगे क्या हुआ, इनको पकड़ा नहीं पकड़ा, क्या हुआ। बट या दिस इज व्हाट इट इज।